Hi everyone, welcome to Ekoching. So in this video, we are going to look at a very important chapter of logical reasoning, that is series and sequence, right? Why I'm saying that this chapter is very much important, because we have seen exams like NMAT, SNAP and IIFT asking questions of series and sequence every year, right? So this I can tell you with pretty much guarantee based on the history of the exams that you will face these questions in examinations like SNAP and NMAT. Those exams which are speed-based exams, right? So it is very much important that you watch the whole video to learn everything about series and sequence, right? So without further much ado, let's begin learning series. So first of all, what is a series, right? Before I get into prime series, what is a series? Series is just a sequence following a particular pattern. So there has to be a pattern in the numbers in the series, right? For example, let's say first number is A, B, C, D, E. So how do you know that this is a series? Because it follows a pattern. Which pattern? They are nothing but just the alphabets. A, B, C, D in the order. So there should be a pattern. There should be an order, right? They should not be chaotic. Chaos नहीं होना चाहिए. Chaos का मतलब क्या होता है? Random. Right? एक member के बाद दूसरा member आएगा, कौन आएगा पता नहीं. That should not be the case. The series cannot be chaotic. It has to have an order. It has to have a particular order. Order का मतलब क्या होता है? It should not be random. There should be logic followed throughout the series. करेक्ट. इसका मतलब है कि लेट्स से ए के बाद बी क्यों आया, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. बी के बाद सी क्यों आया, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. एंड दैट लॉजिक शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज. ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई और लॉजिक, इनका कोई और लॉजिक, इनका कोई और लॉजिक. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. द लॉजिक शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, है ना. सो चलो, विद दैट इन माइंड, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, वी हैव टू स्टडी डिफरेंट पैटर्न्स, राइट. So the first pattern or the first type that we are going to study is prime series. Okay. Now obviously, first of all, you need to know what are prime numbers. So prime numbers किसको बोलते हैं? So prime numbers are numbers with exactly two factors. Prime numbers are numbers that have exactly two factors, not one, not more than two, exactly two, right? So what are some examples of prime numbers? So we have 2, 3, 5, 7, 9. Is 9 a prime number? No, 9 is not a prime number, because 9 has more than two factors, or 9 has 9 we can see in the table of 3 as well. 3 into 3 is 9. So 9 has factors 1, 3, 9. Those are more than 2. So 9 is not a prime number, but we have 11, 13, 17, 19, 23 and so on. These are all prime numbers, and they can, they can have exactly two factors, none of the other numbers, right? Okay, so what are prime series? Okay, let me just get rid of this. So prime series is the series in which the logic is prime numbers. Okay, let me give you one example. Let's say I'm giving you this series 5, 7, 11, 13, 17, 19, and then question mark. So obviously you are supposed to find the missing number, the question mark wala number, right? Now looking at the numbers, you can see that all of them are prime numbers. So 5 is prime, 7 is prime, 11 is prime, 13, and they are in order, in increasing order. So obviously we know that the next term is going to be 23 based on the prime number. The next prime number is 23. So answer is going to be 23. That's a very simple common example of prime series. Okay, what if I give you example like this? Let's say, now this is the series. What will be the next? The series is 4, 9, 25, 49, 121. What is going to be the next term? Think about it. Pause the video for a couple of seconds. Think about it. कि next term क्या हो सकता है? Try to find the logic behind this series. क्या logic है? What is the logic? So number one, we can say that they are all perfect square, है ना?
ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। सो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर का सीरीज है? नहीं। 1 4 9, उसके बाद 16 मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 36 मिसिंग है, तो सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। सो व्हाट कुड इट बी? ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर। सो ओ नाउ वी नोटिस कि भाई ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। These are the squares of prime numbers. So what is the next prime number? 13. So 13 का square, that is 169 is going to be the answer. हालांकि ये नंबर्स प्राइम नहीं है, ये सारे नंबर्स 4 9 25, बट इस सीरीज का लॉजिक प्राइम नंबर्स है। ये सीरीज प्राइम नंबर्स से एक्सप्लेन की जा सकती है। दिस सीरीज कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of prime numbers, and that is why it is an example of prime series, right? Okay, let me give you another example. Let me use this case. Third example. Okay, let's say I'm starting with 4. Okay, so this is the series. Quite interesting. 4 6 9 14 21 32 45. What will be the next term? Interesting series. Pause the video for about 30 seconds. Try to find out the logic. Obviously, क्योंकि ये प्राइम सीरीज का सेक्शन चल रहा है, आंसर प्राइम नंबर्स में ही है, but then I want you to figure out the pattern on your own. So pause the video for about 30 seconds. Look at the series, look at the numbers. Try to figure out कि 4 के बाद 6 कैसे आया, 6 के बाद 9 कैसे आया, 9 के बाद 14 कैसे आया. Try to think about that. Okay, so I hope you have figured it out. Okay, so let's look at 4 6 9. Now this is 2 का jump, or we can say 2 का difference. This is 3 का difference. This is 5 का difference. 7 का increase. 11 का increase. So obviously यहाँ पर 13 का increase. So these are prime numbers. Increase जो हो रहा है ना, जो jump हो रहा है, वो prime numbers का हो रहा है. So obviously 13 के बाद next क्या आएगा? 17. So अब 17 का jump लेना है. 45 plus 17, that is going to be 62 is the answer. 62 is the answer. So yes, these were not all prime numbers, but logic is still prime number का logic. Logic is still prime number का logic. Are you able to grasp it? Yes. So many times in the series where you see प्रोग्रेशन जिस हिसाब से हो रहा है, उसका बेसिक, उसका लॉजिक प्राइम नंबर्स में छुपा हुआ होता है, राइट? सो ऑब्वियसली इन आवर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आई जस्ट वांट यू टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. प्लीज नोट डाउन दीज एग्जांपल्स. आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड फॉर अ व्हाइल. पॉज द वीडियो फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मिनट्स. ट्राई टू नोट डाउन द एग्जांपल्स सो दैट आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू कैन गो बैक टू योर नोट्स एंड यू कैन रेफर टू देम, राइट? Okay, so I hope you have noted down the examples. So first section was prime series. Okay, let's move on to the next type of series, that is common difference series. Common difference series. इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस की बात होगी और कहीं ना कहीं वो डिफरेंस कॉमन होगा, राइट? इतना हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस सीरीज? लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से 2 4 6 8 10 12 14. What will be the next term, right? इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता दुनिया में. ये सबसे आसान क्वेश्चन. आप लोग जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया, आप लोग बोलेंगे सर ये तो इवन नंबर्स है, सिंपल है, सबसे सिंपल, राइट? द आंसर इज गोइंग टू बी 16. यस, यू आर राइट. बट ये इवन नंबर्स है, उसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि भाई 16 क्यों आंसर है? तो हाँ, आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि सर डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स, जैसे यहाँ पर डिफरेंस 2 है, 4 and 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का डिफरेंस, 2 2 2, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए. ये देखिए अपनी डिफरेंस हर जगह कॉमन है. दैट इज व्हाई इसको कॉमन डिफरेंस सीरीज बोला जाता है. एंड बाय नाउ आप में से बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा इस सीरीज का दूसरा नाम. कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेकंड नेम? कैन यू जस्ट गेस? कहीं भी लिख दीजिए अपना आंसर एंड सी आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं. द सेकंड नेम फॉर दिस सीरीज इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जिसको हम प्यार से एपी बुलाया करते थे, है ना?
टर्म 2 एंड टर्म 1 का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस टर्म 3 एंड टर्म 2 का है. सो आई एम सेइंग दिस इज, लेट्स से दिस इज टर्म 1, दिस इज टर्म 2, दिस इज टर्म 3, दिस इज टर्म 4. इन दोनों का गैप इज d, इन दोनों का गैप भी d, इन दोनों का गैप भी d एंड सो ऑन. ये सेम चीज कंटिन्यू हो रही है. दैट इज कॉमन डिफरेंस सीरीज, है ना. तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से चलिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म. पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 10 seconds. Try to find out the answer and resume. 10 सेकंड ही दे रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं दे रहा हूं. The question does not deserve more time. चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है. 4 से 7, so difference is 3. यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3. So obviously यहाँ पर भी 3 ही आएगा. Answer is 19 and I'm sure आप में से सारे लोगों ने इसको सही तरीके से सॉल्व किया होगा. I'm fine with that, है ना. So that was the first example. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Let's say the question is like this. Four, 10, 16, 22, 28. Again, pause the video for about 10 seconds. Try to find the answer. Mention it somewhere and resume. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. What is the gap? यहाँ पर आप देख रहे हैं गैप एक 6, 6, 6, 6. So obviously अब भी 6 का गैप होना चाहिए. आंसर इज 34, है ना. अभी तक तो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहा है. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिए. पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 30 seconds. फिगर आउट क्या क्या आंसर आएगा. 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, उससे ज्यादा नहीं. तब तक आपको लॉजिक फिगर आउट हो जाना चाहिए. तो लेट्स हैव अ लुक. देखिए डिफरेंस कॉमन है क्या, पहले ये तय करो. यहाँ पर डिफरेंस 1 का इधर 2 का है, तो भैया डिफरेंस इधर 1 इधर 2 कॉमन तो नहीं है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. इधर 3 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस. देखिए डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, लेकिन डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन है. देखिए इसका मतलब यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7, और 24 and 7 हो जाएगा 31. दैट इज द आंसर, राइट. डिफरेंस कॉमन नहीं था लेकिन डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन था. डिफरेंस कॉमन नहीं था लेकिन डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन था, राइट. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. Fourth example. So let's say इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या कीजिएगा, थिंक अबाउट. Look at the series. Take about 45 seconds and try to figure out what is happening in the series. Try to figure it out. Try to just find out some logical explanation जिससे आप समझा सको कि सीरीज में हो क्या रहा है. Okay, so I hope by now you're done and you have the answer. So let's have a look. यहाँ पर 5 से 9, फिर 9 से 7, फिर 7 से 13. इसका मतलब डिफरेंस कॉमन तो नहीं है, डिफरेंस कॉमन तो नहीं है. बट लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. अगर मैं 5 का 7 से डिफरेंस देखूं तो 2, 7 का 9 से डिफरेंस 2, 9 का 11 से डिफरेंस 2. सिमिलरली 9 से 13 का डिफरेंस 4, 13 से 17 का डिफरेंस 4, 17 से 21 का डिफरेंस भी 4. इसका मतलब ये एक सीरीज नहीं है, दीज आर 2 सीरीज और 2 सीक्वेंसेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ऑल्टरनेट सीरीज, राइट.
तो नेक्स्ट टर्म किसकी सीरीज में आएगा, ये 11 वाले में आएगा, 11 में 2, तो ये होना चाहिए 13 इज द आंसर। कई बार ऐसा होगा कि एक सीरीज में, एक सीरीज नहीं 2 सीरीज होंगी, 2 से 3 भी हो सकती है। तो मान लो कि अगर एक सीरीज का डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है तो एक बार ये चेक करना बनता है क्या ऑल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ रहा है। अगर ऑल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू आस्क कॉमन डिफरेंस सीरीज, है ना। So that was the second type, common difference series. आगे बढ़ते हैं. Okay, wait. Let me just clear the board and let me give you a couple of minutes to write down the examples. So please pause the video for 2 minutes. लिख लीजिए अपने notes में because you are going to need those notes. Okay. So I hope by now you have jotted down everything. Let us move to common ratio series. जैसे कॉमन डिफरेंस सीरीज में 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन था, कॉमन रेशियो सीरीज में नाम से ही पता चलता है कि 2 टर्म्स के बीच का रेशियो कॉमन होगा। जैसे कि लेट्स से 1 2 4 8 16 32 क्वेश्चन। देखिए पहले सीरीज का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। टर्म 2 एंड टर्म 1 का रेशियो है 2, रेशियो मतलब 2/1। 4 एंड 2 का रेशियो भी 2, 8 एंड 4 का रेशियो भी 2, 16 एंड 8 का रेशियो भी 2, 32 एंड 16 का रेशियो भी 2। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी रेशियो 2 का होना चाहिए, तो 32 इंटू 2 आंसर इज 64। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो कि हर एक टर्म मल्टीप्लाइड विथ 2 हो रहा है, हर एक टर्म मल्टीप्लाइड विथ 2 हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर कॉमन रेशियो सीरीज में क्या होगा, टर्म 2 एंड टर्म 1 का जो रेशियो होगा वही सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो होगा। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज को हम एक और नाम से जानते थे, व्हाट वाज दैट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते थे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, जीपी, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स से चलिए वेरी सिंपल एग्जांपल, पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। पहला टर्म है 3, फिर 12, फिर 48, अब क्या आएगा। सो ऑब्वियसली आप देख पाओगे कि यार हर एक टर्म मल्टीप्लाइड विथ 4 हो रहा है, सो दिस इंटू 4, दिस इंटू 4, सो यहाँ पर भी क्या आएगा इंटू 4, 48 इंटू 4, 50 इंटू 4 कर दो 200, उसमें से 8 माइनस कर लो, सो 192, दैट इज द आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और करते हैं, सेकेंड। चलिए 2, 6, 18, 54, 162, अब क्या आएगा। पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 10-15 सेकेंड्स, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक टर्म क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड विथ 3 हो रहा है, करेक्ट। हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 3 होता है 48, मतलब 480, और 2 इंटू 3 6, तो आंसर क्या आएगा 486। 486 इज द आंसर, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग दिख रहा है अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उससे, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। So I want you to pause the video for about 1 minute maximum and figure out the logic, figure out the pattern and tell me the answer. Okay, so I hope आप लोगों ने अभी तक इसको ट्राई किया होगा। Now see, आप देखिए कि हर एक टर्म के साथ क्या हो रहा है। 81 से हमें मिला 27, so obviously डिवाइड बाय 3 हो रहा है, राइट, डिवाइड बाय 3 हो रहा है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 और साइन भी चेंज हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3। इसलिए देखो -27 इंटू -1/3 9, 9 इंटू -1/3 -3, इसका मतलब इसके साथ अब हमें -1/3 मल्टीप्लाई करना है। सो -1/3 जो ये है इंटू -1/3
इसका मतलब आंसर क्या आएगा अपना 1/9, है ना। इंटीजर नहीं है इसलिए आपको शायद थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा, बट देन बस सेम लॉजिक फॉलो करना है कि हर टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट। हर टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज इट, दैट इज द होल स्टोरी, करेक्ट। सो दैट इज कॉमन रेशियो सीरीज, इन अदर वर्ड्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी एंड जीपी के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, आई नो दैट, राइट। बस यहां पर वही लॉजिक लगाना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव द फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज पावर सीरीज। पावर सीरीज का क्या मतलब है? पावर तो आप जानते हैं, पावर किसको बोलते हैं? लेट्स से x रेज टू y, ये जो y होता है ये पावर होता है, राइट। So let me give you an example of the series. The series is let's say 1, 4, 9, 16, 25, 36 and question mark. आप बोलोगे सर क्यों इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हो, है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, बस स्क्वायर किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 7 का स्क्वायर, 49। कितना आसान क्वेश्चन था, वाहियात क्वेश्चन भी बोल सकते हो, राइट। ओके, लेट मी ट्राई टू गिव यू अनदर वन। चलो इसको ट्राई करो। 1 के बाद 27, 27 के बाद 125, थोड़ा सा ट्रिकी। Pause the video for about 30 seconds, try to figure out the logic and resume when you have understood. Okay, I hope by now you have got the logic. देखिए 1 के बाद 27, 27 के बाद 125, पावर लग रहा है। देखो पावर होने का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? अगर आपका सीरीज बड़े बड़े जंप ले रहा है, बड़े बड़े जंप, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले कर रहा होगा। जैसे 1 से 27 सीधा, 27 से 125, तो ये किसी न किसी के पावर में बढ़ रही है चीजें, है ना। तो 1 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। देखो क्यूब चल रहा है, क्यूब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ऑब्वियसली अब क्या आएगा 7 का क्यूब, हेंस 343 इज द आंसर। 7 का क्यूब 343 इज द आंसर। दिस इज पावर सीरीज। पावर में बढ़ रही है बातें, है ना, पावर में बढ़ रही है। ओके, एक और ट्राई करते हैं, चलिए। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 followed by 8, then followed by 9, then 64, then 25, then 216, next क्या आएगा? Pause the video for about 45 seconds and try to figure out कि वो क्या रहा है। शायद आपको पता तो चल गया होगा कि पावर चल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, पावर सीरीज है ये पता चला होगा, बट लॉजिक क्रैक करो। एक टर्म से दूसरा टर्म कैसे आ रहा है, दूसरा टर्म से तीसरा टर्म कैसे आ रहा है, ट्राई टू फिगर इट आउट एंड रिज्यूम व्हेन यू आर डन। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है। देखिए 1 से 8, 8 से 9, 9 से 64, 25, 216, देख के पहला ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि यार ये तो नंबर्स के स्क्वायर एंड क्यूब्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो जैसे कि 1 है वो 1 का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, 3 है वो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो शायद ये 1 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। ओके, ये ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पर 8 आया, 8 2 का स्क्वायर तो नहीं है बट उसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब 64, ये 6 का क्यूब। सो अब आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 चल रहा है लेकिन स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब चल रहा है। सो 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर 6 क्यूब, अब आएगा 7 स्क्वायर, हेंस आंसर इज 49। बट लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है एक टर्म से दूसरे टर्म में, राइट। एक टर्म के बाद दूसरा टर्म आपको कैसे मिल रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन।
2 से 12, 12 से 36, 36 से 80, 80 से 150। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। जब भी मैं सीरीज पढ़ाता हूँ मैं हमेशा ये वाला सीरीज करवाता हूँ, बिकॉज ये सीरीज आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है टेस्ट टेकर के दिमाग में झांकने के लिए। यू कैन सी दैट हाउ टेस्ट टेकर्स थिंक, यू कैन सी हाउ दे ट्विस्ट द सीरीज, हाउ दे ट्विस्ट द सीक्वेंसेस, एंड देन उसको मिला के एक सीक्वेंस बनाया जाता है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस वन। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको 10 सेकंड में ही क्रैक कर ले, हो सकता है कुछ लोग 2 मिनट में भी ना कर पाए। So I want to give you 2 minutes, pause the video for 2 minutes, try to solve it on your own, figure out करो कि यार लॉजिक क्या है, और अगर लॉजिक क्रैक हो जाता है then resume the video, because logic is really solid। ऐसा नहीं है कि कोई random लॉजिक है, लॉजिक काफी solid है। So I hope by now आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। Now let's understand। 2 से 12, 12 से 36, 36 से 80, 80 से 150। ओके, देखिए स्क्वायर सीरीज जो होती है, स्क्वायर सीरीज वो कैसे होती है? 1, 4, 9, 16, 25, 36 and so on। क्यूब सीरीज कैसे होती है? 1, 8, 27, 64, 125 and 216। ओके, आप बोलोगे सर ये सब क्यों करवा रहे हो, सीरीज तो अपना अलग है। आप बस सम कर दो यहाँ पर, 1 + 1 2, 4 + 8 12, 9 + 27 36, 16 + 64 80, 25 125 150। देखो सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2 12 36 80 150। सो इसका मतलब ये सीरीज स्क्वायर एंड क्यूब का सम था। 1 स्क्वायर + 1 क्यूब, 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, 4 स्क्वायर + 4 क्यूब। इसका मतलब अब आएगा 6 स्क्वायर + 6 क्यूब, दैट इज 36 and 216, 252 इज द आंसर। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। पावर सीरीज ही है ये, दिस इज पावर सीरीज ओनली। मैंने आपको बताया था कि अगर जंप बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, जैसे यहाँ 10 का जंप, फिर यहाँ पर 24 का जंप, यहाँ पर सीधा 44 का जंप, यहाँ पर सीधा 70 का जंप, जंप बड़े बड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पावर प्ले कर रहा है, पावर इज प्लेइंग समवेयर, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट गिव्स एन आइडिया दैट टेस्ट टेकर्स कैसे सोचते हैं। आपको ऑब्वियसली ये सीरीज नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियसली ये नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये वाला सीरीज पक्का आने का चांस है। मतलब ऐसे वाला सीरीज जहां पर लॉजिक जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको क्रैक करने के लिए, सीधा आपको दिख नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा कि चलो ये लॉजिक निकालते हैं, वो लॉजिक निकालते हैं, तब जाकर आपका क्वेश्चन जो है क्रैक होता है, राइट। सो दैट वाज पावर सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिसलेनियस? मिसलेनियस मतलब लिटरली कुछ भी, कुछ भी, मतलब इधर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीधा सीधा लॉजिक नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक होगा, सीधा सीधा नहीं। जो पहली नजर में लगे वो लॉजिक नहीं होगा, जो 2 3 4 बार सोचना पड़े वैसा वाला लॉजिक होगा, है ना। अब लोग सर समझ नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल दीजिए ना, तो डोंट वरी, इसी के लिए तो वीडियो बनाए, है ना। ओके चलो, लेट मी गिव एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन, 1 2 5 10 20 50 100 200 500, अब क्या आएगा नेक्स्ट? बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ओके, आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट 2 minutes फॉर दिस वन। एंड वंस अगेन, डू नॉट थिंक ऑफ नॉर्मल एरिथमेटिक लॉजिक। मैंने पहले ही बोल दिया कि लॉजिक टेढ़ा मेढ़ा होगा, सॉलिड होगा पक्की बात है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होगा। तो आपको सोचना है कि ये क्या हो सकता है, व्हाट एंड मिसलेनियस में एक चीज जरूर होती है कि मिसलेनियस सीरीज में हमेशा कहीं ना कहीं मीनिंग छुपा होता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम सीरीज है, नहीं, मीनिंगफुल सीरीज है। ये मीनिंगफुल सीरीज है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है, आपको बस वो मीनिंग पता करना है। सीरीज बोर्ड पे है,
1 2 5 10 20 50 100 200 500 सॉल्व कीजिए, टेक 2 मिनट्स, आई एम ओके विद दैट। बट 2 मिनट के बाद वापस आ जाना है। इसमें अगर 2 मिनट तक नहीं समझ में आया तो शायद आगे भी नहीं समझ में आएगा अनलेस विदाउट माई इनपुट। So pause for 2 minutes, try to solve on your own and resume when you are done. चलिए, so I hope आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। Now, अब अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ऐसा वाला चल रहा है, तो अब आगे आएगा 1000। आप में से कुछ लोगों का आंसर अगर 1000 है तो वो आंसर गलत है। एंड नाउ लेट मी गिव यू द हिंट। हिंट देने के बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपका आंसर 1000 है तो वो गलत तो है ही है, बट वो क्रिमिनल भी है, वो इलीगल भी है। अगर आपका आंसर 1000 है तो वो गलत तो है ही, इनकरेक्ट तो है ही, बट इट इज ऑल्सो इलीगल। नाउ थिंक, एंड आई एम श्योर अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है, लॉजिक क्या है। आई एम स्टिल गोइंग टू गिव यू 1 मिनट आफ्टर दिस so that you can think on my hint that the answer 1000 is not only incorrect but it is also illegal. Think about it. Take 1 minute. I'm okay with that. चलिए, आई होप आप लोगों ने पॉज किया और आपको लॉजिक समझ में आ गया हो। मैंने बोला था इलीगल, तो इस लाइन पे सोचना है आपको कि भाई ऐसा तो क्या है यार कि इलीगल हो गया है ना। तो भाई कुछ सालों पहले ये चीज बैन हो चुकी है, इलीगल घोषित कर दी गई है। Yes, I am talking about demonetization. These are nothing but the currencies of notes. So we have a note of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee, 20 rupee, 50, 100, 200, 500. We do not have 1000 rupee note. 1000 rupee note है ही नहीं अपने पास। कौन सा नोट है सीधा अब नेक्स्ट? 2000 is the answer. 2000 is the answer. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी मच इंटरेस्टिंग, है ना। सो आपको अब समझ में आ गया मिसलेनियस सीरीज में लॉजिक हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होगा बॉस, सीधा साधा नहीं, है ना। आप सोचोगे सर ये तो नंबर्स है, नंबर से मीनिंग निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। चलिए, सो दिस 31, 28, 31, 30, 31. What is the next term? Take about 1 minute for this one. 1 मिनट से ज्यादा आपको इस पे टाइम नहीं लेना है। सो आप 1 मिनट तक वीडियो पॉज कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द आंसर, एंड व्हेन यू आर डन जस्ट रिज्यूम। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया और आप में से काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहाँ पर लॉजिक टेढ़ा मेढ़ा लगाना है, सीधा साधा नहीं। लेट्स लुक एट द नंबर्स। ये नंबर्स कुछ फेमिलियर नहीं लग रहे? 31, 28, 31, 30, 31। सो हाँ, ये आपको इसलिए फेमिलियर लग रहा है कि भाई ये है नंबर ऑफ डेज, ये है जनवरी के नंबर ऑफ डेज, ये है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इसका मतलब अब आएगा जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30। so 30 is the answer. क्या लॉजिक था? they were number of days, they were number of days, है ना। अगेन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा या फिर काफी जो पहली नजर में नहीं समझ में वैसा वाला लॉजिक था, है ना। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एटीन 1884, 1888, 1892, 1896 एंड द नेक्स्ट, ये पूछा है। और आपको इधर भी एक दिया हुआ, दैट इज 1808। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। 1884, 1888, 1892, 1896, देन सम मिसिंग नंबर एंड देन 1908। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट ले लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट ले लीजिए।
एंड यस, आप में से कुछ लोगों को शायद अभी लग रहा होगा कि मैंने कोई मिस्टेक किया है. नो, देयर इज नो मिस्टेक इन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टैंड्स करेक्ट. योर जॉब इज टू फिगर आउट द लॉजिक. ओके, एंड नो, दो टर्म्स मिसिंग नहीं है, एक ही टर्म मिसिंग है. दो टर्म मिसिंग नहीं है, एक ही टर्म मिसिंग है. तो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स, अपना दिमाग यूज कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा. ऑलराइट, सो आई होप बाय नाउ आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने. शायद किसी ने सॉल्व भी कर लिया होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1884, 1888, 1892, 1896 एंड देन एक स्टेप मिसिंग है और फिर 1908. देखो, नॉर्मल दिमाग ऐसा सोचेगा कि ये 4 का डिफरेंस है, 4 से बढ़ रहा है. +4 +4 +4, इधर भी +4 होना चाहिए. अगर आप वैसा सोचते हो तो इधर क्या आंसर आएगा 1900. आप में से कुछ लोगों का आंसर 1900 होगा, लेकिन फिर आप देखोगे इधर से 1908 है तो ये +8 हो गया. तो ये कैसे हो सकता है आंसर? ये गलत है. दैट इज नॉट द आंसर. यहां से आपको समझ जाना चाहिए था कि लॉजिक कुछ और है. ओके, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं. दे लुक लाइक years. ईयर नंबर 1888, 1884, 1892 एंड सो ऑन. तो हाँ, ये years हैं. ओके, नॉट ओनली years, these are leap years. लीप ईयर किसको बोलते हैं? लीप ईयर अगेन दोज ईयर्स जहां पर एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है फरवरी में. सो 1884 लीप ईयर था, 1888 था, 1892 था, 1896 था. 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर. लीप ईयर का डेफिनेशन आपको पता होगा. लीप ईयर का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बट अगर वो सेंचुरियन ईयर है, अगर वो सेंचुरियन ईयर है, सेंचुरियन मतलब x00, तो वो 400 का मल्टीपल होना चाहिए. मतलब 400, 800, 1200 एंड सो ऑन. उस लॉजिक से 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट लीप ईयर आएगा 1904 एंड दैट इज द आंसर. बहुत प्यारा क्वेश्चन. 1904 लीप ईयर था. इसका लॉजिक क्या है? ये सीरीज बस लीप ईयर को लिस्ट कर रहा है. दैट्स इट. द सीरीज इज लिस्टिंग द लीप ईयर्स. और कैसे पता चलना चाहिए आपको? यहां पर ये टर्म उन्होंने दे दिया था इसकी मदद से. करेक्ट, ये टर्म उन्होंने दे दिया था, उसकी मदद से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए था. राइट. सो मिसलेनियस सीरीज में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपको टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. बट द गुड थिंग इज दैट मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं. बहुत रेयरली पूछे जाते हैं. दे आर नॉट रेगुलरली आस्क्ड एज द अदर सीरीज क्वेश्चंस. सो उस हिसाब से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. और इनके लॉजिक भी होंगे जो काफी टाइम से जो चले आ रहे हैं. लीप ईयर का लॉजिक पकड़ लो, नंबर ऑफ डेज का लॉजिक पकड़ लो. करेक्ट. थोड़े ही ऐसे लॉजिक हैं जो कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं. करेक्ट, एंड दैट टू वेरी रेयरली आस्क्ड. सो डोंट वरी टू मच अबाउट टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस. उतने ज्यादा आप यू वोंट कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस एज रेगुलरली एज यू वुड कम अक्रॉस द अदर सीरीज क्वेश्चंस. है ना? ओके, सो ये 5 टाइप के हमने सीरीज के क्वेश्चंस देखे. Now is the time to get into the question and start practicing. So let me take you to our questions. आपका job क्या है? You have to find the missing number, missing term in the series. That is your sole job. Okay. So let me take you to the first question.